Hello, a very good afternoon everyone. Welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. This is Dr. Priyanka and today we are going to discuss about human respiratory system, right? So आज हम पढ़ने वाले हैं the human respiratory system from the chapter breathing and exchange of gases. Hope you all are ready for today's class. Hello Sonal, good afternoon, all those who are watching the session, फटाफट से hi hello बोल दो in the chat box and mark your presence. Okay, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, remember 3 questions could be asked from here. One by one we are going to cover all the topics of this chapter, right? एंड डेफिनेटली जो भी हम पढ़ेंगे वो सब आपको अभी ही याद हो जाएगा इन द क्लास. जैसे क्लास के बाद जाओगे यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन. ओके, सो होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज क्लास. तो चलो देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम हमारे क्लास में. या रिमेंबर, क्लास बहुत ध्यान से देखना है आपको क्योंकि एंड में कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपसे पूछूंगी. रेडी? ओके. So before going ahead, with the human respiratory system from this chapter, breathing and exchange of gases. Hello Megha, good afternoon बच्चा. Hello Jay Jagannath, good afternoon everyone. Before going ahead with the human respiratory system, मैं थोड़े कुछ questions पूछूंगी from the respiratory system present in various animals, right? Animal kingdom आपने अभी तक पढ़ लिया होगा. हमें पता है कि humans के पास होता है lungs for respiration, right? But there are some animals जिनके पास भी respiratory organ होते हैं और वो भी पूछा जाता है नीट में, right? So before going ahead with the human respiratory system, can you tell me what is bronchial respiration? Anyone here in the class? क्या कोई मुझे बता सकता है कि bronchial respiration क्या होगा और किसमें होगा? सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी गो अहेड विद दिस चैप्टर. ओके, तो ये आप देखोगे कि नीट में भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, राइट? सो कैन यू टेल मी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज व्हाट? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्या होता है? बाय ब्रोंक्यूल्स नहीं, यही तो प्रॉब्लम है. वी डोंट नो व्हाट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. Bronchial respiration is respiration through gills. लिखो बच्चा. Everybody please write this down that bronchial respiration is respiration through gills. किसमें होगा? Definitely ये आपको मिलेगा aquatic animals में. Okay? Aquatic animals में मिलेगा, right? नहीं, bronchioles के सहारे नहीं. That is termed as pulmonary respiration. ठीक है, जो रेस्पिरेशन लंग्स के सहारे होगा उसे हम बोलते हैं पल्मनरी रेस्पिरेशन, राइट? तो अब डिफरेंस पता चला आपको. सो व्हाट इज पल्मनरी रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. रेप्टाइल्स में होगा, मैमल्स में होगा, बर्ड्स में होगा, राइट? यस अंशुमन, सोनल, एवरीवन, मेघा, जे, एम आई राइट? तो पल्मनरी रेस्पिरेशन आपको याद रखना है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आपको याद रखना है. नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बच्चों? Cutaneous respiration. Cutaneous respiration through skin, moist skin. Absolutely correct, Anshuman. Very good. किसमें होगा ये? It is seen in frog, earthworm, right? Right? So before going ahead with the human respiratory system, we should understand that there are various types of respiration
like branchial respiration through gills, very good बच्चा, pulmonary respiration through lungs and cutaneous respiration through moist skin, जो कि होगा frog में and earthworm में. Okay? So अगर इतना समझ में आया, then we will proceed ahead and we will study in detail the pulmonary respiration. हाँ, जिंदगी भर बर्बाद होते नहीं तो और क्या. इसीलिए मैंने सोचा कि बिफोर गोइंग अहेड कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि नीट में पूछा जाता है. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, you will see that it starts with external nares or nostrils, right? So external nares and nostrils will be the first part of the human respiratory system, right? Now after that there will be the nasal cavity or the nasal chamber, right? Then there is pharynx. इसको इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स के लिए सोनल आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. इन्फिनिटी लर्न नीट टेलीग्राम चैनल, सारे नोट्स जो भी मैं पढ़ाऊंगी सब नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा आफ्टर द लेक्चर. ठीक है, सो दिस इज फॉर एवरीवन हु आर अटेंडिंग दिस लेक्चर. प्लीज मेक श्योर यू आर ऑल्सो सब्सक्राइबिंग आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स. ओके, एनोटेटेड नोट्स आपको मिल जाएगा बेटा. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो मैंने बोला एक्सटर्नल नेरिस के बाद है नेजल चैम्बर. ठीक है, नेजल चैम्बर के बाद आएगा बेटा फेरिंग्स. Now, for pharynx, you must know that pharynx is the common chamber for both food and air. तो जो भी आप खाओगे, whenever you are breathing in, air and food दोनों कहाँ पहुंचेंगे बच्चों? pharynx में. So let's write it down. Pharynx is the common chamber for food and air. ठीक है, प्लीज लुक एट दिस इमेज. तो यहां पे दिस इज फेरिंग्स एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट फेरिंग्स के भी पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फेरिंग्स जो कि नोज के पीछे आएगा उसे बोलता है नेजोफेरिंग्स. ओरल कैविटी के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट है दैट इज टर्म्ड एज ओरोफेरिंग्स. और लेरिंग्स की तरफ जो फेरिंग्स का पार्ट है दैट इज नोन एज लेरिंगोफेरिंग्स. तो फेरिंग्स के भी पार्ट है बट इट इज नॉट इन एनसीईआरटी. तो नीट में पूछे जाने की संभावना एकदम निल है. तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट हियर. बस इतना आपको याद रखना है. नाउ नेक्स्ट, फेरिंग्स. ओके, सिंस इट इज द कॉमन चैम्बर, हियर यू कैन सी दैट देयर आर 2 ओपनिंग्स हियर इन द फेरिंग्स. 2 ओपनिंग है. एक तो ईसोफेगस के लिए, सो दिस वन which is present towards the dorsal side, that is esophagus और food pipe. और जो आगे की तरफ है बच्चों वो क्या है? that is trachea. yes, I will tell you that is trachea और wind pipe जो कि larynx के बाद शुरू होगा. so I will just write here trachea. right? नाउ याद रखो, वेरी गुड अंशुमन, याद रखो ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया जो कि फेरिंग्स में खुलता है, दिस इज टर्म्ड एज ग्लॉटिस. वेरी गुड, दिस इज टर्म्ड एज ग्लॉटिस. तो ये ओपनिंग क्या हो गई? ग्लॉटिस हो गई. ठीक है, अब आपने सोचा होगा कभी कि फेरिंग्स इज अ कॉमन चैम्बर, खा भी हम वहीं से रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल दैट बोलस ऑफ फूड कैन गो इनटू दिस ग्लॉटिस और द ट्रैकिया एंड कैन ब्लॉक योर विंड पाइप. हो सकता है ऐसा कि आपने खाया बोलस ऑफ फूड, स्पेशली जब आप बात करते हुए खाते हो, हंसते हुए खाते हो, गाना गाते हुए खाते हो. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका
bolus of food instead of going into esophagus trachea में जा सकता है. So to prevent that, there is a flap-like structure termed as epiglottis. So glottis को कवर करने के लिए होता है epiglottis. ओके, ध्यान देना सभी बच्चे यहां पर. So this is a flap-like structure that will be covering the glottis and will prevent your food from going into the trachea. Now इस epiglottis के structure पे question पूछा जाता है in NEET. So this epiglottis is made up of cartilage. Which cartilage can anybody tell me in the chat box? ये NCERT में है और ये NEET का previous year question है. Anybody in the chat box? Come on fast. This epiglottis is made up of elastic cartilage. Elastic cartilage जो glottis को cover करेगा और food को नहीं. No, not hyaline. Please write it down. This is important. NCERT में है, NEET का question है. Okay, so this elastic cartilage is epiglottis and it is covering the glottis and will prevent the bolus of food from going into the trachea. So this is clear. I hope this is clear. ठीक है. Now pharynx के बाद the next structure is pharynx के बाद the next structure is larynx. Larynx को बोला जाता है voice box. Larynx is voice box. Yes, very good मेघा. Larynx में होगा hyaline cartilage. ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, right? So larynx is voice box, जिसमें आपको मिलेंगे vocal cords, true and false vocal cord. True vocal cords are actually responsible for producing sound. False vocal cord will just give moisture to the true vocal cord. ठीक है? And yes, हाइलिन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होगा? लैरिंग्स में. अगर आपसे लैरिंग्स में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है ये पूछा जाता है, जो कि एडम्स एप्पल बनाता है इन केस ऑफ मेल्स, सो दैट इज हाइलिन कार्टिलेज. ओके, तो यहां पर आपको मिलेगा हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है. और स्पेसिफिकली अगर पूछा गया कि एडम्स एप्पल कौन से कार्टिलेज से बनता है, देन योर आंसर विल बी thyroid cartilage. Okay, so Adam's apple is formed of thyroid cartilage and it is present only in males. याद रहेगा ये पॉइंट? तो चलो, लैरिंग्स के बाद अगर आप नीचे देखोगे, this tubular structure is termed as trachea. ये आगे की तरफ होता है, ventrally present होता है, and this is what? This is trachea. Now this trachea is lined by इनकम्प्लीट C-shaped hyaline rings. ठीक है. तो लैरिंग्स के बाद क्या आएगा बच्चों? ट्रैकिया. ओके. नाउ इस ट्रैकिया में भी आपको क्या मिलेंगे? C-shaped hyaline cartilage rings. राइट. Now, ये जो C-shaped hyaline cartilage ring है, ये कहां पर इनकम्प्लीट होते हैं? डॉर्सली. पीछे की तरफ इनकम्प्लीट होंगे, आगे की तरफ तो ये कंप्लीट होंगे, लाइक दिस. ठीक है. पीछे की तरफ इनकम्प्लीट है, आगे की तरफ कंप्लीट है. ओके. नाउ इट इज नॉट दैट ट्रैकिया विल ओनली बी कवर्ड बाय हाइलिन रिंग्स. आगे आप देखोगे कि ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स में भी हाइलिन रिंग होती है, और ये है क्वेश्चन नीट का. ओके. तो चलो देखते हैं ट्रैकिया. यू विल सी हियर दैट ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकस एंड एंटर्स. ब्रोंकाई बोलेंगे दो को. सो ट्रैकिया विल डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई, विल एंटर द लंग्स. एंड ये कौन से वर्टिब्रल लेवल पे होता है? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ नीट. तो चलो लेट्स लिखते हैं. ट्रैकिया के बाद देयर इज ब्रोंकाई. ओके. ट्रैकिया विल बी फॉर्मिंग ब्रोंकाई. कैन यू सी यहां पर
ट्रैकिया जो है डिवाइड हो गया है इनटू टू ब्रोंकाई एट विच वर्टिब्रल लेवल? एनीवन? एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra. Okay, write it down. This is given in NCERT and asked in NEET. So trachea से बनेगा bronchi at the level of 5th thoracic vertebra. ठीक है, इसको लिख लेना है सभी को. So 5th thoracic vertebra में क्या बना रहे हैं हम? ये वी आर मेकिंग अ फ्लो चार्ट, वी आर मेकिंग अ माइंड मैप टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर आस्क्ड इन नीट. तो इस स्लाइड में आप देखोगे कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चा कवर हो जाएगा. ठीक है, याद रखना है. सो ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई बनाएगा एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra एंड विल बी एंटरिंग इनटू द लंग्स. ठीक है, ना ब्रोंकाई से आगे चल के क्या बनेगा? ब्रोंकाई विल बी फॉर्मिंग bronchioles and these bronchioles are also lined by hyaline cartilage and फिर इन bronchioles से ultimately बनेगा alveoli. We will be discussing separately कौन कौन से cells होते हैं in the lining of alveoli and what is the function of alveoli. ठीक है, नाउ याद रखना बच्चों, ये जो हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, हाइलिन कार्टिलेज की, दैट आर फॉर्मिंग रिंग्स अराउंड ट्रैकिया, दैट आर फॉर्मिंग रिंग्स अराउंड ब्रोंकल्स, ब्रोंक्यूल्स, वो किस लेवल से किस लेवल तक होते हैं? सो मार्क इट. सो द ट्रैकिया, द प्राइमरी, सेकेंडरी and the tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by these rings, are supported by incomplete cartilaginous ring made up of hyaline cartilage. So trachea में आपको मिलेगा hyaline cartilage के rings, bronchi में मिलेंगे कौन कौन से bronchi? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई में मिलेंगे एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी मिलेंगे आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आस्क्ड इन नीट. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये हो गया. 5th thoracic vertebra में ट्रैकिया विल ब्रेक डाउन इनटू ब्रोंकाई. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया. अंडरस्टूड टिल हियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर. ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ आर, फिर से बताऊं, देखो एक बहुत सिंपल वे में आपको बता देती हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस पूरे स्लाइड में. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेघा, यस बिलाल, अंडरस्टूड. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट योर ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra. तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्टिलेजिनस रिंग, हाइलिन की रिंग्स कहां होती है बेटा? ट्रैकिया में होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई में होगी एंड इवन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी होगी. एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. Our respiratory system, that means the respiratory system in humans, is divided into two parts, the conducting part and the exchange part. कंडक्टिंग पार्ट का क्या क्या काम है और एक्सचेंज पार्ट का क्या क्या काम है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में. सो आई एम एक्चुअली डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट विल बी आस्क्ड इन नीट, दैट वाज आस्क्ड इन नीट. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे जो है पूरा लेक्चर प्लान डिजाइन हुआ है. राइट, सो कमिंग टू द कंडक्टिंग पार्ट. नाउ व्हाट इज कंडक्टिंग पार्ट? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कंडक्टिंग पार्ट होता क्या है. पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में देयर विल बी पार्ट्स that are just transporting air, जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है एयर को. ठीक है, और भी फंक्शन है, लेट्स सी. राइट, सो कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक होगा आपके
रेस्पिरेटरी सिस्टम का फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टिल टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। सभी बच्चे ध्यान से जो है पूरा लेक्चर देखेंगे बिकॉज एट द एंड देयर विल बी क्वेश्चंस एज वेल एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे बच्चे सारे सही जवाब देंगे, राइट। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके हमने देखा टिल टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, इट इज जस्ट कंडक्टिंग पार्ट। यहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैसेस का, ओनली द एयर इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम atmosphere to alveoli, from alveoli to atmosphere, that's it. It also helps in clearing the foreign particles that are coming together with the air. अगर air से foreign particles हमारे respiratory system में जा रहा है तो उसको भी ये clear करता है। कैसे करता है? With the help of mucus, right? Ciliated epithelium that is trapped by the mucus and it comes out of your respiratory system. Now next is it also humidifies and also bring the air to body temperature. कई बार हम ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं जहाँ पे बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है और ठंडा ठंडा एयर अगर हमारे बॉडी में जाएगा, डेफिनेटली दिस इज द पार्ट दैट विल रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ दैट एयर। ठीक है, सो ये तीनों फंक्शन है, याद रखना कंडक्टिंग पार्ट के। इट इज नॉट जस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस रिपीटेडली बिकॉज दिस इज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन। दे विल गिव यू 4 points, okay, and they will ask which of the following is not the function of conducting part। कौन सा कंडक्टिंग पार्ट का है ही नहीं पार्ट, ओके, का काम। सो योर आंसर विल बी अदर देन दिस। सो दीज 3 आर द important points or important work of the conducting part. Now coming to the exchange part. Now कहां से कहां तक exchange part होगा आपके respiratory system में? Starting from alveoli and the alveolar duct. The only part of your lungs that actually works as the exchange part of your lungs is alveoli and the alveolar duct, right? Now, अरे रैंक तो हमारी आई है बेटा श्री चैतन्य 720 out of 720 and we are Infinity Learn by Sri Chaitanya, right? So I am proud of this and you are also, you should be proud of it as well, right? तो चलो आगे बढ़ते हैं कि एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है। Now the work of exchange part is definitely exchange of gases, right? So not only it helps in exchange of gases, okay, not only it will exchange the gases, okay, and याद रखना सिर्फ alveoli नहीं है exchange part, alveolar duct is also a part of exchange part of your respiratory system. तो conducting and exchange part आपको समझ में आ गया है। Now let's proceed. Conducting and exchange part के functions आपको होने चाहिए clear। याद रखो ये जो है this is again function of conducting part। चलो Now can you see, हमने देखा अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से epiglottis will be covering the glottis while swallowing. So I hope this is absolutely clear कि किस तरह से जो है epiglottis will be covering the glottis when you are swallowing the bolus of food, right? And can you repeat it? Can you repeat it? Can you repeat it कि ये जो epiglottis है ये कौन से कार्टिलेज से बना हुआ है? कौन बताएगा मुझे ये epiglottis कौन से कार्टिलेज से बना हुआ है? Who will tell me? So this epiglottis is made up of elastic cartilage. Okay, this is made up of elastic cartilage, right? Now let's move further. अभी हमने external nares देखा, pharynx देखा, larynx, very good, elastic cartilage मेगा, हमने trachea देखा, bronchus, bronchiole सब देखा. Now let's understand that how it is forming lungs. ठीक है, तो अब lungs की बात करते हैं. अब आते हैं हम lungs पे. ठीक, now when we talk about lungs, again when we talk about lungs, remember there are 2 lungs in us, okay,
दो लंग्स हैं, राइट एंड द लेफ्ट लंग, द राइट एंड द लेफ्ट लंग. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट एंड द लेफ्ट लंग, एक लंग थोड़ा सा छोटा है और एक लंग बड़ा है. तो कौन सा वाला छोटा है? द लेफ्ट वन. सो लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग. ठीक है. नाउ जब हम बात करते हैं लेफ्ट लंग की, तो यहां पर आप देखोगे बेटा, देयर इज सम इंडेंटेशन लाइक दिस. एक इस तरह से इंडेंटेशन है, एक नॉच है जिसे बोला जाता है कार्डियक नॉच. रिमेंबर, कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट इन लंग्स एंड नॉट इन हार्ट. तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए. हेलो वंशिका, हेलो वंशिका, हाउ आर यू? ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार्डियक नॉच. ठीक है. नाउ व्हाई दिस कार्डियक नॉच इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस विल मेक स्पेस फॉर हार्ट. राइट. सो ये वाला जो एरिया है बेटा, दिस एरिया इज टर्म्ड एज मीडियास्टिनम. दिस इज टर्म्ड एज मीडियास्टिनम. ओके. नाउ दिस मीडियास्टिनम, this mediastinum have the trachea, okay, will have the esophagus and definitely the heart. समझ में आया mediastinum सभी को? हाय वंशिका, आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से जो लेफ्ट लंग है उसमें एक नॉच है, दैट इज टर्म्ड एज द कार्डियक नॉच. ओके, एंड इट इज फॉर्मिंग अ मीडियास्टिनम. ओके, जहां पर होगा हार्ट. ये नॉच क्या करता है? इट विल बी अकोमोडेटिंग द हार्ट. हमें पता है कि हार्ट तो बीच में होता है, बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, नाउ यू विल नोटिस that the lungs are further divided into lobes. So in the left lung there are only 2 lobes and in the right lung there are 3 lobes. तो चलो वो भी बनाते हैं. So pay attention here that there will be 2 oblique fissures. ओके, बोथ इन द राइट एंड द लेफ्ट लंग. दोनों ही राइट एंड लेफ्ट लंग में 2 ऑब्लिक फिशर होते हैं. यहां पर देख रहे हो ये जो मैंने बताया, दिस इज द ऑब्लिक फिशर. सो लेट्स राइट इट डाउन. ऑब्लिक फिशर. ओके, सो दिस इज ऑब्लिक फिशर. नाउ टुगेदर विथ ऑब्लिक फिशर, on the right hand side you will find there is one more fissure like this, which is termed as the horizontal fissure. तो यहां पर एक horizontal fissure भी आपको मिलेगा जो कि आपको left lung में नहीं मिलेगा. So this is the difference between the right lung and the left lung. So in the right lung there is one horizontal fissure as well. ठीक है. और ये हॉरिजॉन्टल फिशर कहां पर नहीं है? लेफ्ट लंग में नहीं है. मतलब यहां पर आप देख सकते हो देयर आर 2 लोब्स हियर. इसका मतलब है कि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हुए, 1 and 2, सुपीरियर एंड इंफीरियर. राइट. एंड ऑन द राइट हैंड साइड देयर आर 3 लोब्स, 1, 2 and 3, सुपीरियर, मिडल एंड द इंफीरियर लोब. इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स राइट दिस डाउन कि लेफ्ट लंग में देयर इज 1 फिशर और उस फिशर का नाम है ऑब्लिक फिशर. ओके, एंड कितने लोब्स हैं यहां पर? यहां पर होंगे ओनली 2 लोब्स. Clear this much everyone? Right? Vanshika, Megha. Now coming to right lung. Right lung में बच्चों 2 fissures होते हैं. 2 fissures होते हैं. कौन कौन से बताओ मुझे in the chat box.
one is horizontal fissure, right, and the another one is oblique fissure, right, and कितने lobes हुए? 3 lobes, right? So this is the anatomy of your lungs. Okay, Bilal. Now coming to the covering of lungs. आप देखोगे कि lungs are covered by pleural membrane. Okay, so lungs are covered by pleural membrane which is made up of 2 membranes. इस pleural membrane के 2 पार्ट होते हैं. एक पार्ट जो लंग्स की तरफ होता है और दूसरा पार्ट जो बाहर की तरफ होता है. ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज फिशर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिलाल. नाउ व्हाई दीज लोब्स आर इंपॉर्टेंट? लोब्स क्यों होने चाहिए लंग्स में? टू लिमिट एनी इन्फेक्शन. तो अगर सपोज देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एनी इन्फेक्शन इन दिस लोब, या अगर कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है, लंग कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है इन दिस लोब, सो चांसेस आर देयर बिकॉज ऑफ दिस फिशर, बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट लोब, यू विल सी द इन्फेक्शन विल बी कन्फाइंड टू जस्ट 1 लोब. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड होगा डेफिनेटली इट विल गो टू अदर लोब्स एज वेल, बट इनिशियली द इन्फेक्शन और एनी disturbance in the lobule will be, or lobes will be confined to that particular lobe first. Understood? So that's why the lungs is further divided into lobes. Okay, so that was about your lungs. Okay, now remember that this lung is present inside your thoracic cavity or your thoracic chamber. Okay Bilal, I hope this is clear. Now what is thoracic cavity or a thoracic chamber? जिसके अंदर आपको lungs मिलेगा. So this thoracic cavity is made up of vertebral column dorsally. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ, so this is the dorsal surface, पीछे की तरफ there is vertebral column and sternum और breastbone ventrally. तो आगे की तरफ आपको क्या मिलेगा? Flat bone, that is the breastbone or the sternum. Then there are ribs laterally. Side में क्या है? Ribs हैं and thin muscular dome shaped diaphragm is present where? In the lower side, that will be separating the thoracic cavity from the abdominal cavity. So above abdominal cavity you will see this diaphragm is there. Okay, so towards the abdominal cavity there is this diaphragm that will be playing a very important part in breathing. We will be studying later on. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया that there is a pleural membrane covering your lungs. So this pleural membrane is made up of 2 membranes and it is filled with pleural fluid. So the inner membrane जो towards the lung है, very good Megha, it acts as a shock absorber. So जो lungs के तरफ है उसे हम बोलते हैं visceral membrane. Okay, एंड जो बाहर की तरफ है उसे हम बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन. राइट, सो प्लूरल मेम्ब्रेन भी 2 मेम्ब्रेन से बना होता है जिसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड. सो अंदर वाले को बोलते हैं हम विसरल मेम्ब्रेन, बाहर वाले को बोलेंगे पैराइटल मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर भरा होगा प्लूरल फ्लूइड. Okay, hope this is clear. ठीक है, so that was about thoracic chamber in which there is lungs, right? तो अगर ये समझ में आया, so let's understand how the breathing works. इसके लिए I will be taking a separate session जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं inspiration and expiration के बारे में, right? तो चलो देखते हैं
कैसे होता है इंस्पिरेशन या ब्रीद इन, हाउ यू आर एबल टू ब्रीद इन. नाउ फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity and the pulmonary cavity. So जब वॉल्यूम आपके thoracic cavity का बढ़ेगा, क्या कम होगा बच्चा? क्या कम होगा? प्रेशर, isn't it? So can you tell me ये कौन सा लॉ है? केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप? केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि जब किसी भी स्पेस का वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होता है. ये कौन सा लॉ होता है? फटाफट से बता दो मुझे इन द चैट बॉक्स. दैट इज बॉयल्स लॉ, राइट? सो हम देखेंगे कि किस तरह से दैट इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ योर thoracic cavity and ultimately pulmonary cavity, and the volume will increase and the pressure is decreasing. प्रेशर जब कम हो रहा है आपके लंग्स में, the air will go inside your lungs. So this is termed as negative pressure breathing. Okay, so this is termed as negative pressure breathing. समझ में आया बच्चों? तो ह्यूमंस में क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग. नाउ दिस इज नॉट देयर इन एम्फीबियंस. क्या आपने कभी फ्रॉग को देखा है? एवरीबडी माइट हैव सीन अ फ्रॉग. जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रॉग में होता है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, राइट, पल्मनरी रेस्पिरेशन, ये सब होता है, राइट? सो कैसे करता है फ्रॉग? आपने कभी देखा है? द फ्रॉग गल्प्स इन एयर एंड दैट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, बट in humans that is negative pressure breathing. Okay, so let's see how the expiration will take place. आप एक्सपिरेशन में देखोगे कि इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस. इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक्चुअली डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड स्टर्नम एंड रिब्स मूव्स आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. ओके, इसके वजह से ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हुआ था, जिसके वजह से एयर आपके एल्वियोलाई में आया था, राइट? सो अगर हम बात करें एक्सपिरेशन की तो बच्चों याद रखो दिस इज अ पैसिव प्रोसेस. ओके, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस का मतलब है कि यहां पर कुछ भी एक्टिव कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है मसल्स का. So there is just relaxation of diaphragm and the external intercostal muscle, जिसके वजह से you will see that again the diaphragm will become dome shaped. The sternum and the ribs will move downward and inward, जिसके वजह से क्या होगा ultimately? The volume of the thoracic cavity, the pulmonary volume will reduce. Okay everyone? The volume will reduce. और जब भी वॉल्यूम कम होगा definitely the pressure will increase. ये भी पढ़ा था हमने बॉयल्स लॉ में, राइट? सो जब वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली द एयर विल गो आउट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर दिस मच? ओके, सो दिस इज हाउ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट हाउ the increase in thoracic volume will cause similar increase in the pulmonary volume. And yes, अभी तो हमने देखे कि सिर्फ दो ही मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में, लाइक डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. नाउ यू विल से मैम कि हम लोग तो फोर्सफुली भी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं. येस, यू कैन डू इट, बट फॉर दैट एडिशनल मसल्स आर रिक्वायर्ड एंड द एब्डोमिनल मसल्स, the additional muscles of the abdomen helps in forceful breathing. And this is also a question of NEET. ये भी बच्चा क्वेश्चन है नीट का, याद रखना है, ठीक है? तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, लेट्स सी क्या क्या पढ़ाया. एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं. हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे थे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? मैंने बताया था कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, दैट इज इंपॉर्टेंट. फिर मैंने बताया कि कार्टिलेज की रिंग, हाइलन कार्टिलेज की रिंग ना सिर्फ ट्रैकिया में होती है,
ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स में भी होती है, दैट मेक्स द वॉल नॉन कोलैप्सिबल। ओके, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग एंड द एक्सचेंज पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट के क्या क्या फंक्शन है। फिर हमने देखा हाउ एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द बोलस ऑफ फूड फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड आर ट्रैकिया, राइट। फिर हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ लंग्स। ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द थोरैसिक चैम्बर, प्लूरल मेम्ब्रेन। हमने थोड़ा ब्रीफ में देखा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के प्रोसेस को भी। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो चलो देखते हैं कौन बच्चा मेरे को इसका सही जवाब दे सकता है। सो द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो यू हैव 4 ऑप्शंस हियर। एक एक करके आपको ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने, इससे पता चलेगा कि किस बच्चे ने ध्यान से पूरा सेशन देखा है। एंड या ऑल दोज हु आर वॉचिंग द सेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स। ओके, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए बेटा, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग आवर इन्फिनिटी लर्न नीट टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द नोट्स, राइट। तो चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। thoracic chamber is located lower to the abdomen. Just now we have seen that thoracic chamber is located on the upper side, so this one is wrong. Next statement says thoracic chamber is built by dorsal ribs. Ribs तो lateral होती है। Ventral vertebral column, no, vertebral column तो dorsal होते हैं, right? मेगा, चलो देखते हैं you are right or wrong। देखते हैं फटाफट से कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। लोअर डायफ्राम एंड लैटरल स्टर्नम, एवरीथिंग इज गिवन रॉन्ग। डायफ्राम तो नीचे होता है बट स्टर्नम तो वेंट्रली होता है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम causes a similar increase in the pulmonary volume, absolutely correct, just now हमने देखा है। very good मेगा, so third one is correct. Fourth statement, humans can increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। बच्चा ये NCERT का लाइन है, this is the line of NCERT, so this is also correct, और ये हमने अभी just last slide में भी देखा। So third and fourth, both the statements are correct. So what will be the correct answer for this question? It will be C. Very good Megha, keep it up. चलो, one more question for you. Can you try this? Inspiration occur when the pressure within the lungs is, ये भी हमने डिस्कस किया है। फटाफट से बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर यहाँ पर। Tell me, less than the atmospheric pressure, greater than the atmospheric pressure, equal to the atmospheric pressure or none of the above। तो जब हम बात करते हैं बेटा इंस्पिरेशन की या इनहेलेशन की, ये तभी होगा when intrapulmonary pressure is less. So when intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, then only there will be inhalation. Very good, very good. Keep it up. Right? So that was all for today. Hope you guys have enjoyed today's session. And enjoying से भी ज़्यादा important है कि आपने समझा जो भी पढ़ाया गया आपको। Likewise, we will be having more sessions where we will be discussing rest of the chapters. Okay, one by one we will be taking all the topics, subtopics, notes आपको मिल जाएंगे बेटा टेलीग्राम चैनल पे। Infinity Learn नीट के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो for all the notes. Okay, and all those who are watching the session, please don't forget to like the session, subscribe कर लो Infinity Learn नीट चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो। So thank you very much. Bye bye all. See you in the next class.